Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi Umar, welcome to eTimes TV. How are you? Hi, thank you so much. Very good. You tell me. Yeah, so excited, nervousness. What's the feeling? I think it's a mixture of excitement, nervousness, because it's not like other reality show where you're actually in touch with the outside world. It's just you're gonna be packed inside with some strangers, and so there's a lot of apprehensions are there. So yeah. Yeah. And what made you say yes to the show, Umar? We know that you're a doctor by profession. So what made you say yes? See, so I would just say I've always been interested in in TV, and as a kid I would just watch TV, and I would say how will I look when I'll be there. But there are circumstances in life, there are not conditions around. You are not that, so that you can actually follow those passion. And I was a very petite guy, and I could never think or imagine that I would be on TV or something. Somehow I continued my education, where I thought I can do great right there, because obviously your family conditions, your financial condition. But somehow when I ended my education, so I thought not education, I would say I just did my post-graduation. So I was like, now I'm I'm independent. I don't want to ask money from my parents. I can survive on my own in city like Mumbai. So I just came here with a dream. Okay, I want to do something in modeling or acting, and somehow it's been now 3 years, and now right now I'm here in front of you, going inside the house. And also the way Asim played the game inside the show, and the way Asim conducted himself, और उसके बाद जो उनकी popularity हुई, जितना प्यार उनको लोगों से मिला, वो भी कहीं ना कहीं एक वजह थी बिग बॉस के लिए हाँ बोलने के लिए. I would say coming to the limelight, Asim was a big inspiration. Asim has been, I would say that was the reason I came to the limelight. Though because I was handling his accounts and everything, so my intention was never like to get to fame or something. I was preparing for my exam, so because I always thought that this is the opportunity for him. So I want to, as a brother, as an elder brother, I don't want to be like I'm busy right now, I can't help him. But because he was doing so good, and I was like, no, and even if he wasn't, I had to do it because I knew this is a one-time opportunity. So all I did was try to help him as much as I could. But somehow people started recognizing me, and the way I portrayed myself, showed myself on social media, they liked me as well. Otherwise आप देखेंगे काफी लोगों के भी भाई बहन जो हैं वो शो में भी आए हैं, because 15 साल से शो चल रहा है ये. It's not just Big Boss 13 एक हिट था. I mean there's been lot of people in the industry, उनके भाई बहन हैं, उनके family आए हैं, they've been on the media. But the limelight मेरे को मिली, I don't think, or I would say जो opportunity मैंने grab की, because I'm an opportunist, I would say. मेरे को पता था कि ये opportunity है. I will do this thing which I was doing back. I would do this for a whole life, but this opportunity I told myself, woman, you'll never get it. वो जो मैंने grab की चीजें, वो जो लोगों को लगा कि he's out there in the field. So वो चीजों की वजह से लोगों ने मेरे को पहचाना, and they liked me, they used to follow me. तो वो एक जर्नी स्टार्ट हो गया, और मैंने कभी वो हल्के में नहीं लिया कि एक फेम आ गया तो ठीक है. बट मैं अपना मेहनत करता रहा, लोगों से मिलता रहा, किसी ने काम दिया, so I was like, they told me, will you be able to do it, because आप इंडस्ट्री से नहीं हो. So I showed them कि I can do this thing. तो उन्होंने भी मेरे को काम दिया. You would see music videos या वगैरह. I wouldn't say कि because वो आसिम की जो fans वगैरह थे, but they did good. Saw something. They saw something in you also. They did phenomenal, because एक भाई होके ठीक है आप फेम में आए, लेकिन जो आपकी ऑडियंस होती है वो हमेशा अलग रहेगी. मेरे भाई की ऑडियंस हमेशा अलग रहेगी. तो अगर मैं ये चीज में आए कि उसके फैंस सब मुझे सपोर्ट करेंगे, तो if you could see my videos, music videos, they've done pretty decent. When my brother does it, it's in millions. The viewership is too much. So वो फैन बेस लेके मैं नहीं घुसा इस चीज में कि वो सब सपोर्ट करेंगे. Otherwise my videos would have been in like millions and trending on YouTube. ऐसा होता नहीं है, because आप you stepped in the industry,
because yes, you got in the limelight, but now it's your journey. Yeah. अब आप कितने लोगों को इंस्पायर करते हो या कितने लोगों को आप पसंद आते हो, वो अब आप एक स्टार्ट कर देते हो जर्नी. तो वो जर्नी स्टार्ट हुआ और बिग बॉस का ऐसा था कि मेरे को पता था ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी, बिकॉज आई हैव दैट कैरेक्टर. जो चीज मुझे बाकी लोगों से स्टैंड आउट करती है, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सर्जन, आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल इन माय प्रोफेशन, आई हैव ऑलरेडी डन इट, एंड आई एम स्टेपिंग इन दिस आल्सो एंड आई एम डूइंग प्रीटी गुड. So वो चीज मुझे, because there are a lot of actors, there are a lot of good looking actors and models in the industry, they don't need me. What differentiates me is I'm not a wannabe, I'm already successful in my profession. I worked hard for 10 years and now I'm here and people are appreciating me, because no, it's not like just because he's his brother I'm coming here. No, I look good. I've been in shape. I've tried to be in my shape. If you've seen my music video, I've tried to act, and जो मेरे co-stars रहे हैं, they've told me you never look like you've been acting first time. तो वो चीजें मैंने explore की हैं अपनी, and that's why I think Big Boss वालों ने they just called me, OTT के लिए बुलाया. I was like नहीं, लाइफ में एक चांस है, चाहे मुझे 2 साल लगे 4 साल लगे, मैंने टीवी पे ही आना है, बिकॉज ये एक ही चांस मिलेगा. ऐसा नहीं कि OTT में होगा कि 2 साल के बाद बोलेंगे टीवी पे आओ. I knew that, so I was like I'm ready to play that gamble. OTT नहीं तो टीवी सही. टीवी पे भी कॉल आ गया, so I was like I want to do it. लेकिन उमर, थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपैरिजन ड्रॉ हो जाते हैं. आप अपनी जर्नी, अपना रास्ता खुद तय करना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल तक खुद पहुंचना चाहते हैं बिना किसी का सपोर्ट लिए. लेकिन क्योंकि आसिम ने अभी रिसेंट सबसे सक्सेसफुल सीजन किया है बिग बॉस के हिस्ट्री में, कंपैरिजंस होंगे, तो वो प्रेशर कहीं बिल्ड होता है. हाँ, वो पर मैं ऐसा बोलूंगा कि आई विल नॉट से कि मैं अपने भाई से इंस्पिरेशन भी ड्राइव करता हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये हूँ. ऑब्वियसली हमारी पर्सनैलिटी अलग है, उसकी पर्सनैलिटी मेरी, बट कुछ चीजें भी है, ब्लड ब्रदर्स, कुछ चीजें सिमिलर होंगी. लोगों को लगेगा ही इज ट्राइंग टू प्ले लाइक गेम लाइक हिम, बट देयर आर सम जो यू गेट फ्रॉम योर फादर विद दैट एग्रेशन, दैट एम्बिशियस, वो जो एक आप में थर्स्ट है कुछ करने का, वो चीज रहेगा. वो लोग सिमिलरिटी ड्रॉ करेंगे, बट आई कैन नॉट चेंज दैट, आई कैन नॉट फेक इट. बट उसके अलावा माय पर्सनैलिटी, आई वुड से आई एम अ लिटिल कामर, थोड़ा मेच्योरिटी लेवल ज्यादा, बिकॉज आई वुड से मेरी एजुकेशन जो मेरे को एक पेशेंस देती है, बिकॉज एक पेशेंस लेवल आप में, बिकॉज एज अ डॉक्टर यू गॉट टू लिसन, यू हैव टू लिसन एंड देन टू रिएक्ट. और आप एज अ डॉक्टर आप प्रेशर में भी काम करते हैं, तो आपका पेशेंस लेवल बहुत प्रेशर में काम किया हूँ. मैं विदाउट स्लीप, विदाउट फूड मैं काम कर चुका हूँ. I used to fast, I used to work for 32 hours. तो मैं बहुत प्रेशर में काम किया है, मेंटली हो, फिजिकली हो. So a lot of pressure because you're dealing with humans. तो वो एक प्रेशर जो है, वो आदत है मेरे को प्रेशर पे काम करने की, और वो चीज मुझे हेल्प करेगी. बाकी चीजें ऑब्वियसली लोग सिमिलरिटी ड्रॉ करेंगी, बिकॉज वो एक सक्सेसफुल सीजन में गया था एंड ही डिड रियली गुड. वो एक प्रेशर रहता है परफॉर्म करने का, बट मैं ऐसे, बट आई एम गोइंग इन विद अ वेरी कूल माइंड कि ठीक है, अगर लाइफ ने अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया, अपना 100% दो. अब आप 3 महीने रहते हो या 1.5 महीने रहते हो, मेरे को वो बुरा नहीं लगेगा कि भाई मैं कर नहीं पाया. नहीं, आई थिंक सबकी अपनी मेहनत, सबकी अपनी किस्मत, तो लोग कैसे कनेक्ट करते हैं उसके साथ, किए मेरे साथ नहीं भी कर सकते. तो इफ आई एम थिंकिंग अबाउट सक्सेस, आई एम थिंकिंग अबाउट फेलियर एज वेल. बिल्कुल राइट. एंड इस बार जंगल थीम है, प्रोमोज में ऑलरेडी दिखा दिया है, तो चैलेंज जो है वो बिग बॉस ने एक लेवल अप कर दिया है. आप कितने एक्साइटेड हैं? डू यू हैव दैट एडवेंचरस स्ट्रीक इन यू? Yeah, I mean, I would say my father has been very adventurous. He's always worked in mountain areas, और हमें भी लेके जाते थे और कैंपिंग की है. और जम्मू एक ऐसा शहर है, सिटी इज प्लेन है बट इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स, तो हमेशा से फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जब भी टाइम मिलता है आई जस्ट गो अवे फ्रॉम द, आई एम नॉट अ बॉय फ्रॉम द सिटी. मैं थोड़ा ग्रीनरी ज्यादा पसंद करता हूँ, तो जब भी मौका मिलता है घर जाता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ या जाता हूँ जंगल, कैंपिंग, ये वो. तो वो चीज सब इननेट है, वो सब आई हैव ग्रोन इन दैट जोन. तो जंगल थीम जो है, जो सर्वाइवल एक इंस्टिंक्ट है, वो है. मतलब लैक ऑफ फूड है, लैक ऑफ स्लीप है. ऐसा नहीं, आई एम नॉट अ गाय हु लिव्स इन लग्जरी. मैं लग्जरी मतलब आई कैन स्टे इन लग्जरी, बट आई कैन स्टे in very limited because family
जो थी, not from a rich family, resources were limited, but obviously time changed, things went better. So I've seen that thing also. I've seen luxury also, I've seen that low side also. So I'm ready for everything, I would say. Yeah. And हमें पता है कि जब कोई पोक करता है या कोई जानबूझ के लड़ाई करता है, हमने आसिम को देख लिया रिएक्ट करते हुए, एंड आसिम इज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों बिग बॉस 13 सक्सेसफुल हुआ. नाउ अगर उमर को कोई जबरदस्ती पोक करता है या फाइट्स ये करने इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है, हाउ वुड यू रिएक्ट? सी, लड़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें हम हमेशा आगे हैं. मतलब एज इन वर्बल, बिकॉज वर्बल आई वुड से वर्बल फाइट्स, आई मीन ये काफी देखिए, ग्रोइंग अप आई हैव सीन लॉट ऑफ देम, सो मेरा आई एम ट्यून्ड टू दैट कि पीपल टॉक, दे से मी अ वर्ड, आई गिव देम बैक 3 वर्ड्स बैक. सो वो एक ट्यूनिंग है. ऐसा नहीं कि वो बिग बॉस में मैं सोच के जा रहा हूँ कि मैंने ऐसे रिएक्ट करना है. वो स्पॉन्टेनियस है. कोई ऊपर उल्टा बात करता है या कोई डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करता है, तो आई गिव देम बैक ट्वाइस व्हाट दे ट्राइंग टू थ्रो एट मी. तो वो चीज हमेशा रहेगी. वो स्पॉन्टेनियस, आई एम दैट स्पॉन्टेनियस, आई हैव दैट रेज दैट पीपल विल सी इफ दे, मतलब मैं वैसा नहीं हूँ कि आई विल जस्ट गो देयर, आई विल, मतलब पीपल विल लाइक व्हाट द फक जस्ट हैपेंड. आई एम नॉट दैट गाय. बट या, if they are saying things or if they are trying to poke me, I think that'll be their mistake, I would say. And how comfortable are you to share things with others, Umar? कुकिंग कर लेते हैं, घर का काम जानते हैं? हाँ, वो देखिए, बॉम्बे में 3 साल हो गए हैं, और बॉम्बे ऐसी सिटी, यू हैव टू, इट जस्ट मेक्स द जो एक कंफर्ट जोन में आप रहे हैं घर में, वो आपको सब हट जाता है और आप सब कुछ खुद करना है, खाने से, सफाई से, एवरीथिंग यू हैव टू डू. तो वो चीज है कि घर पे खुद ही वो चीज सीख ली है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड चीजें शेयर करेंगे, टॉयलेट शेयर करने पड़ेंगे, बेड शेयर करेंगे. I'm just gonna pour my heart out, I would say. So ये शो सब एक्सप्रेशंस का है. कितना आप your verbal, कितना इंटरैक्टिव हैं आप, और कितनी आप अपनी बातें पहुंचा सकते हैं लोगों तक. बात मेरी दूसरे से होगी, लेकिन वो चीज जो है वो लोगों तक पहुंचने के लिए मैं बात करूंगा. जी जी बिल्कुल. एंड यू नो ये 13 जो सीजन था, अगर आसिम के वजह से फेमस हुआ, तो हमें पता है कि इनिशियली सिद्धार्थ और आसिम की दोस्ती भी बहुत मानी गई शो को. रिसेंटली वी लॉस्ट सिद्धार्थ एंड इट वाज कहीं ना कहीं बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. व्हाट डू यू वांट टू से? आई वुड जस्ट से कि Siddharth was a lovely guy. He was a gentleman, I would say. और उन दोनों ने उस शो को, उस दोनों की वजह से I would say the show has been so far. और and we lost him recently. मतलब I mean I was in shock that a guy like him, just so strong and fit and inspiration to everyone. So we just lost him. So I would just pray for him and his family so that they cope up well with the loss. And I think I would say कि उसके बाद मैं मिल नहीं पाया. लास्ट टाइम मैं सेट पे ही मिला था. I wish I could have met him and but ठीक है, I think जो लिखा था वही हुआ. But yeah, I met him last time जब शो पे. So he said कि I hope you received my sorry. So he was a guy, I mean that कि ठीक है, गलती की, so sorry बोलने में उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं छोटा हो जाऊंगा. So he was a lovely guy, I would say. And also Umar, you're good looking, you're charming, well maintained, fit, successful in another profession. अंदर अगर सिंगल से मिंगल होने का मौका मिला, so अगर अफेक्शन के लिए will you control feelings या you'll go all out? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं ऐसा कुछ I don't want to control any. Nobody can control me, I would say. तो इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ. So I know this is an opportunity for me. And I want to show people different elements: love, friendship, anger, maturity, everything I want to do out there. So ऐसा नहीं है कि I'm going to hold back my feelings. There's nobody outside who's going to be like ये क्या कर रहा है. हाँ. So मैं जा रहा हूँ, अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे. लेकिन अगर प्यार होता है, अफेक्शन होता है, तो आपको छुपाएंगे नहीं? नहीं, छुपाने की तो जरूरत ही नहीं है. If there is, that's what I'm telling you. I'm gonna pour all my heart out. Ki if I have love for someone, I would say I love you. If I hate, like I hate you. तो वो चीज मैं अपने आप को
कि कुछ दबाना नहीं, जैसे नॉर्मल रियल लाइफ में होता है ना, कुछ इमोशन होता है लेकिन आप बाहर नहीं निकालते हो, बट वो शो ऐसा है कि बेशरम, मतलब आई वुड से आई एम जस्ट बेशरम बन के जाना है, जो कुछ है तो बोल दिया, बाद में देखा जाएगा। जी बिल्कुल। एंड हाउ एक्साइटेड आर यू टू मीट सलमान खान दिस टाइम एज अ कंटेस्टेंट? या मतलब 2 साल पहले मैं वहां बैठा था शो में, पहली बार जब बुलाया था तो आई वाज टॉकिंग अबाउट आसिम, तो आज एज ए कंटेस्टेंट जाऊंगा तो वो एक जर्नी है 2 साल की, और तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि यू नो सर क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, तू यहाँ क्या कर रहा है तो वो चीजें हैं, बट मुझे लगता है थोड़े 5-10 मिनट के बाद मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। स्टार्टिंग में आई विल बी नर्वस, बट सर के साथ मैं एक बार डिनर भी कर चुका हूँ वहीं सेट पे, तो वो एक थोड़ा सा आई वुड से कंफर्ट जोन है, ऐसा नहीं होगा कि अरे अब क्या करूँ मैं। या एंड लास्टली बिफोर रैपिंग अप, आसिम से कोई बात हुई है, कोई टिप्स मिला है, कोई गाइडेंस मिला है? आई नो आप तो रोज, या बोलिए। आसिम से तो रोज बात होती है, तो यू नो वो व्हाटएवर हिज एक्सपीरियंसेस वो सब शेयर करता है, ऑब्वियसली जस्ट टू हेल्प मी आउट एवरी टाइम, यू नो, सो जस्ट अ कॉल अवे, तो वो जो बताता रहता है, एंड यू नो या एंड हिमांशी भी आपको सपोर्ट करती हुई नजर आई, यू नो, इवन शी इज रूटिंग फॉर यू, सो हिमांशी is a family, I would say. I mean, obviously she's gonna नहीं करेगी तो मैं आके बात छोड़ूंगा नहीं तो she's a family, I would say. तो obviously अभी मतलब कि आने से पहले, क्वारंटीन से पहले मैं मिला हिमांशी को, आसिम को, हम सब बैठे फैमिली, मेरे मदर आए थे, सिस्टर, सब बैठ के आराम से बातें हुई हैं बहुत सारी बिग बॉस की, तो उनको मिलके ही मैं क्वारंटीन हुआ। या थैंक यू सो मच उमर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो. Hope you rock inside the house and come back with the trophy. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Take care. Bye.